KRB online classes. Okay, so students, today's video is about your exercise 7.2 and 7.3. Okay, so 7.2 का हमने आपका नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे और अब हम करेंगे नंबर 6. ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे. ओके, सो योर नंबर 6 इज व्हाट? Find the area of the following shapes. Here some shapes are given which are irregular shape, and these are already converted into regular shape. So you have to find out the area of each regular shape, and after that you have to find out the area of the shape by adding the area of the regular shape. Okay, so let's do your number 8. Okay, so in your number 8 diagram is like this. A rectangle is given and a triangle. Okay, तो जिस तरह का है आपका ये जो शेप जो दिया गया है, and write down the measurement of each side. And here this one is 3 centimeter. This side is not given. First name it A, B, C, D and E. Okay, this side is 3 centimeter. This side is 5 centimeter. This side is 4 centimeter, and this side is 2 centimeter. Okay, so here the measurements of or the length or breadth of a rectangle given, length is 4 centimeter, breadth is 2 centimeter. And in case of triangle where height is given 3 centimeter and this one is 5 centimeter, then this will become, this is the base. Base कितना होगा आपका? ये 4 centimeter, ये इक्वल हो जाएगा ये दोनों, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर. होगा कि नहीं? क्योंकि हमारा रेक्टेंगल का जो होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है. देखो हमें हाइट मिल गया और एक बेस मिल गया, तो अब हम इजीली ट्रायंगल का क्या एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला है 2/2 into height into base, and the formula for rectangle, area of rectangle is length into breadth. So let's do it. First we have to find out the area of triangle. Area of triangle is equal to, formula is half into height into base, and here your height of the triangle is how much? 3 centimeter, and the base is how much? 4 centimeter. Okay, then half into 3 into 4, 12, then 12 by 2 कर देते हैं. 12 को अगर 2 से डिवाइड करने से कितना होगा? 6. 2 6 जा 12. 6 centimeter square. This is the unit for area. Next we have to find out the area of what? Rectangle. Area of rectangle is equal to, formula is length into breadth, and here in this rectangle the length is 4 centimeter and breadth is 2 centimeter. So 4 into 2 is your 8 centimeter square. So these are the area of two shapes, regular shape, a triangle and rectangle. To find out the area of this much, we have to add both the area. इसका हम एरिया और इसका हम एरिया को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल सेट का हमें क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा. So right here at last, hence area of the shape, is equal to
area of triangle plus area of rectangle. Area of triangle plus area of rectangle. So area of triangle is how much? We have calculated here 6 centimeter square plus area of rectangle is 8 centimeter square. So at this number 6 plus 8 is your 14 centimeter square, and hence we got the area of this shape ACDE is 14 centimeter square. ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो एरिया ऑफ दिस शेप ACD, यहाँ पर नेम कर देना है ACD. ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ दिस शेप ACDE लिखने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, नेक्स्ट कम टू योर नंबर बी. बी नंबर पे देखो आपका कौन सा शेप दिया है? इरेगुलर शेप है, इसको रेगुलर शेप में कन्वर्ट किए गए हैं 4 ट्रायंगल्स में. तो इसका हम अलग अलग ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन ऐड करेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो हियर योर फिगर और शेप इज गिवन लाइक दिस. कुछ इस तरह से दिए गए हैं और ये फिगर का नेम क्या है? ABCD. ABCD शेप है. ओके, एंड इन दिस फिगर वी हैव we got 2 triangle. यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बना है नीचे ऐसे एक ट्रायंगल और ऊपर एक और एक ट्रायंगल बना है. ओके, एंड दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल. ये अपर ट्रायंगल का हाइट जो है कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर. और उसका बेस, नीचे का बेस कितना है? इतना 5 है, इतना 5 है, तो 5 plus 5 10 सेंटीमीटर. ओके, सेम फॉर दिस ट्रायंगल द बेस इज सेम 5 plus 5 10. इसका बेस यही हो गया. ओके, ये उल्टा है तो बेस से वही होगा. नेक्स्ट हाइट इज योर हियर 4 centimeter. So first we have to find out the area of the upper one triangle, then lower one triangle. Okay, so right here area of triangle, area of triangle. Which triangle? Upper one triangle is क्या है? नेम क्या है? That is your ACD. So right here area of triangle. आप यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल दे सकते हो, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम ट्रायंगल का सिंबल दे रहे हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD is equal to half into height into base. And here the height is 12 centimeter. Then base is 10 centimeter. Then it becomes half into 12 into 10, 120. Then 120 into 1, 120 again. Here 2. Now divide this 120 with 2. Then we must get 60 centimeter square. 60 होगा, 2 6 12 and 0 का 0 हो जाएगा तो कितना है? 60. Next find out the area of the lower one triangle ABC. ABC. ये ट्रायंगल ABC. Okay. Then formula is half into height into base. Put the values here. The height is how much? 4 centimeter. And the base is same 10 centimeter. So multiply this first. Half into 4 into 10, 40. Then 40 by 2. 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 20 centimeter square. Okay. Now find out the total area of this shape ABCD. Right here, hence area of shape ABCD is equal to area of triangle ACD and area of triangle ABC. So right here area of
area of triangle ABC. So what is the area of triangle ACD? How much? 60 centimeter square. And area of triangle ABC is 20 centimeter square. Then it will become 60 and 20, 80 centimeter square. This is the area of this ABCD. Okay. Next, अब करेंगे number C. Next student, in C number, your pictures or shape is like this. So first we have to understand this shape first. Okay. तो यहाँ पर देखो आपको फर्स्ट क्या दिया गया ओपन वॉल में ट्रायंगल दिया गया है और ये यहाँ पर भी एक ट्रायंगल यहाँ पर भी एक ट्रायंगल एंड दिस इज योर व्हाट क्या लग रहा है ये मेजरमेंट देखिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है सो दिस वन इज योर रेक्टेंगल ओके एंड द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल ये 8 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ओके ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा ओके एंड दिस वन टोटल इज 8 सेंटीमीटर इतना 8 सेंटीमीटर नहीं यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है ओके तो देखो ये 5 हो ये भी 5 हो तो हम अगर 8 से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3 बाकी के 3 सेंटीमीटर जो है ये और इसको मिलाकर आपका 3 सेंटीमीटर हो रहा है और ये दोनों जो है इक्वल लेंथ का है ये जितना लेंथ है ये भी उतना ही लेंथ है ओके तो हम 3 सेंटीमीटर को इक्वल टू 2 में डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 1 and 5 3 सेंटीमीटर में 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 1.5 सेंटीमीटर तो इसका लेंथ हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर ओके तो यहाँ पर आपको मिल गया ये ट्रायंगल का बेस ये है ट्रायंगल का बेस और ये हो गया इसका हाइट 8 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का भी सेम बेस 1.5 हाइट 8 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम दिस we know that these two triangles are same equal. Next come to this triangle. Here the base of the triangle is total from here to here B to E 8 centimeter. So base is 8 centimeter and this side is 5 centimeter and this side is 5 centimeter. So this one is which type of triangle? Isosceles triangle. तो यहाँ पर देखो हम ट्रायंगल का जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है हमें हाइट की जरूरत पड़ती है बट यहाँ पर आपका हाइट नहीं दिया गया है तो हमें एक हाइट बनाना पड़ेगा एक्जैक्टली मिडिल में तो देखो 8 को अगर हम इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं और यहाँ से हम हाइट ड्रॉ करते हैं तो इधर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा फिर से 4 सेंटीमीटर ये ट्रायंगल के बेस के लिए बट ये ट्रायंगल का बेस कितना होगा 1.5 इधर पे 1.5 और ये ट्रायंगल का 4 and 4 8 सेंटीमीटर तो ये हो गया आपका हाइट बट वी डोंट नो द मेजरमेंट ऑफ दिस हाइट सो वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल फर्स्ट ओके सो राइट हियर हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल AB and E is equal to हाइट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है ये कोई भी ट्रायंगल को लो इधर ये साइड लो या फिर ये साइड ये जो AB है यहाँ पे लिख देंगे AB स्क्वायर माइनस द बेस इज यहाँ पर हम O नेमिंग कर देते हैं OB और OE होगा तो हम OB ले रहे हैं OB कितना आ रहा है OB स्क्वायर ओके बाय 2 कर देंगे ओके बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ रहा है देखो AB कितना है आपका 5 सेंटीमीटर तो 5 स्क्वायर प्लस OB इज योर 4 सेंटीमीटर so 4 स्क्वायर बाय 2 now 5 square means you have to multiply 5 2 times so 5 into 5 20 sorry this one minus 25 minus 4 into 4 16 by 2 okay next subtract this 25 minus 16 is your 9 by 2 if you divide 9 with 2
पॉइंट्स रिमेन, यहाँ पर पॉइंट डाल दिए, यहाँ पर 0 हो गया, 2 5 10. So here your answer is 4.5 centimeter. The height of the triangle is 4.5 centimeter. So स्टूडेंट्स ये जो है आपका बाय टू डी का इसका हम रूट ओवर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. तो ये एक और मिस्टेक हो गया, इसको फिर से और एक बार करेंगे. ओके, तो ये ab स्क्वायर माइनस ob स्क्वायर का हम क्या करेंगे, रूट ओवर फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो ab इज हियर 5 स्क्वायर माइनस ob इज 4 स्क्वायर. रूट ओवर हम पुट कर दिए, x 25 माइनस 16. So root over x 25 minus 16 9. ओके, तो ये जो सिंबल है स्क्वायर रूट का, सॉरी रूट ओवर का, उसको हमें हटाना है. उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 9 कौन सा नंबर को हम डबल मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, दैट इज 3 into 3 is your 9. तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 3 का स्क्वायर. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 centimeter. Height of this triangle is how much? 3 centimeter. Okay? तो यहाँ पर आपका जो height of triangle ABE, AO is your what? Height of this triangle. Triangle ABE का height जो है AO, तो AO square is equal to AB square minus, सॉरी ये AO हो जाएगा, AO is equal to AB square minus OB square का रूट ओवर. ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ we have to find out the area of this triangle first. Area of triangle ABE is equal to, what is the formula? Half into height into base. Okay, and here the height is how much, 3 centimeter, and base is how much, 8 centimeter. ये तो height हो गया, हम इसका base जो है ये total लेंगे, तो ये कितना हो गया, 8 centimeter. Then 3 into half into 3 into 8 24 divided by 2 is equal to 12 centimeter square. So height of the triangle ABE is what, 12 centimeter square. Okay, next we have to find out the area of these two triangles. Okay, so right here, area of triangle BCG and DEF. BCG and triangle DEF. दोनों का एक साथ निकालेंगे क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल के साथ, तो दोनों का आ जाएगा, है कि नहीं. सो राइट हियर द फॉर्मूला इज half into height into base. Now put the figures here. 2 into half into height is your 1.5 into base is your how much? Sorry, height is your 8 centimeter and base is your 1.5 centimeter. Okay. Now 2 into इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 into 1.5 के साथ. So 1.5 into 8. 8 5 are 40. 4 is remain. 8 1 are 8 and 4 12. Now put a point after one digit. So we got here how much? 12 by half into 12 आ गया. अगर हम 2 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6. Okay. Then 2 into this one becomes 6 1 is 6. तो कितना हो गया? 6 6 2 जा 12.
12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इसका हमें एरिया मिल गया, इसका और इसका दोनों को मिलाकर फिर से 12 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट आप ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल what CDFG is equal to length into breadth, and here the length is how much? 5 centimeter and breadth is your 8 centimeter. So 5 into 8 is your 40 centimeter square. This is the area of rectangle CDFG. Now यहाँ पर देखो हमें सब कुछ मिल गया, इसका एरिया मिल गया, इसका और सबका। अब क्या करेंगे, सारे को ऐड करेंगे। ओके, सो राइट हियर एरिया ऑफ द शेप का नेम क्या है? हम आउटर नेमिंग को पढ़ेंगे A B C D E. So area of the shape A B C D E is equal to क्या करना है, हमें सबको प्लस करना है। So first we have to write the area of the upper one triangle, area of triangle ABE plus area of triangle BCG and DEF. Triangle BCG and triangle DEF. Okay, next यहाँ पर प्लस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट CDFG. ये आपको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत लेंथी है, तो ये आपको ये एडजस्ट करके आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस। ट्रायंगल ABE का एरिया कितना आया था पहले नहीं मालूम ना, कितना आया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा आप देख सकते हो। ओके, तो कितना आया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCG एंड DEF का कितना आया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस CDFG रेक्टेंगल का कितना आया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 12 plus 12 24 plus 40 is your 64 centimeter square. Okay. Okay students, so here we did your number 6 of A, B, C number। तो ये सब आपको क्या करना है, अपने कॉपी में नोटबुक में आपको ये सब देखकर लिखना है, और ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिगर फर्स्ट दैट यू कैन इजीली डू दिस टाइप ऑफ नंबर। अगर इरेगुलर शेप दिया जाएगा, इरेगुलर शेप मीन्स व्हाट, अगर आपको ट्रायंगल रेक्टेंगल या फिर यस ट्रायंगल रेक्टेंगल और स्क्वायर अगर नहीं होता है ये शेप, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा रेगुलर शेप में। जैसे कि आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, या फिर रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है, या फिर स्क्वायर फॉर्म हो सकता है, क्योंकि हमें रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर का ही एरिया का फॉर्मूला मालूम है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेगुलर शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम टोटल एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे कोई भी शेप का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ईच नंबर एंड यू मस्ट डू ऑल द numbers on your notebook. Okay, thank you. Have a good day.